Bismillahirrahmanirrahim. Direct proportion. Direct proportion. G. Types of proportion. There are 4 types of proportion. Number 1, direct proportion. Number B, inverse proportion. Number 3, compound proportion. Or number 4, continued proportion. By direct proportion, inverse proportion, compound proportion or continued proportion. G. Chapter number 5, Basic Arithmetic. जी भाई ने ये बुक परचेज करने फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1 रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली और इत्तसाम पब्लिशर जी. जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन जी. Suppose the price of one piece of chocolate is ₹10. G. Suppose the price of one piece of chocolate is ₹10. If a person wants to buy 10 pieces of chocolates, then he has to pay ₹100. If he wants to buy 20 pieces of chocolates, he has to pay ₹200 and so on. We can easily conclude that if the person buys more pieces of chocolate, he has to pay more and he has to pay less if he buys less piece of chocolates. भाईजान अगर वो चॉकलेट ज्यादा खरीदेगा तो उसको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, अगर कम चॉकलेट्स लेगा तो भैया वो पैसे कम पे करने पड़ेंगे जी. तो नंबर ऑफ पीसेज ऑफ चॉकलेट्स, टोटल प्राइस रुपीज का, अगर भाई 100 पीसेज कितने, 10 पीसेज कितने हैं 100 रुपीज के, 20 पीसेज कितने हैं जी 200 के, और 30 पीसेज कितने हैं 300 के, 300 रुपीज के जी. दैट इज as piece of chocolate are increased, total price also increase. Conversely, if the price of chocolate are if the pieces of chocolates are decreased, total price also decrease. In such situation, we say that pieces of chocolate and prices are directly related. भाई हम कहेंगे कि वो क्या है जी, prices of chocolates and prices of chocolates and prices are directly related. अब कहते हैं in other words, भाई ये डेफिनेशन है, if increased in one quantity causes the increase in other quantity, or decrease in one quantity causes the decrease in other quantity, then we say that they are related directly. They are in direct proportions. But they are in direct proportions. But they are in direct proportion. Once again, if increase in one quantity causes the increase in the other quantity, or decrease in one quantity causes decrease in other quantity, then we say that they are related directly. They are in direct proportions. भाई हम क्या कहेंगे, ये क्या है, direct proportions. For example, if x and y are in direct proportion, then division of x and y will be constant. By will be x और y की जो होगी constant होगी, तो x बराबर होगा cy. In above example, we see that by 10 by 100 बराबर होगा 1 by 10, by 200 20 by 200 1 by 10, और 30 by 300 का 1 by 10. That is, each ratio is the same. by each ratio क्या होगी जी, सेम होगी जी. by each ratio क्या होगी जी, सेम होगी जी. G. Hence, if we are dealing with the quantities which are related directly, that which are in the direct proportion, then we shall use the following rule. By number of chocolates, total cost. by 10 for rupees क्या है जी 100, और 20 for rupees क्या है जी 200. तो 10 over 20 बराबर होगा 10 by 100 by 200. इन जनरल आप देखें क्वांटिटी A क्वांटिटी B, ये A रेशो B बराबर होगा जी
सी रेशो डी। तो ए डी बराबर होगा बी सी के। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, भाई प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन जी। देखें भाई ए यानी कि अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो भैया अगर क्वांटिटी ए बढ़ेगी तो क्वांटिटी बी भी बढ़ जाएगी, अगर क्वांटिटी 1 बढ़ेगी तो क्वांटिटी 2 बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों की रेशो का अगर सेम होगी। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन भाई ए डी बराबर होगा बी सी के जी। एग्जाम्पल 1 है, इफ 30 वजन देखिएगा, इफ 30 डजन्स ऑफ एक्स कॉस्ट रुपीज 300 भाई इफ 30 डजन्स ऑफ एक्स कॉस्ट रुपीज 300 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 डजन्स ऑफ एक्स। भाई आपने फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 डजन्स ऑफ एक्स की आपने कीमत निकालनी। लेट एक्स बी दी रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ 5 डजन्स। भाई एक्स क्या है जी, प्राइस ऑफ, लेट एक्स बी दी रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ 5 डजन्स ऑफ एक्स। तो कहते हैं एक्स डजन में 30, तो रुपीज कितने हैं जी, कॉस्ट कितनी है जी 300, और ये 5 होगा तो भाई जन ये क्या होगा जी एक्स। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो भाई जन ये भी डिक्रीज हो जाएगा जी। सिंस द क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन वी यूज द अबव फार्मूला। आप 30 ओवर 5 कर लो और 300 ओवर एक्स कर लो जी। भाई हल करेंगे तो एक्स हमारे पास क्या निकलेगा जी 50 रुपीज। भाई एक्स हमारे पास क्या निकलेगा जी 50 रुपीज जी। एग्जाम्पल 2 है, A car travels 81 kilometer in 4.5 liters of petrol. भाई ये कार travels 81 kilometer in 4.5 liters of petrol. How far will it go in 20 liters of petrol? भाई 20 liters of petrol में कितना फासला तय करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Example 2, a car travels 81 kilometer in 4.5 liters of petrol. How far will it go by 20 liters of petrol? जी, a car travels 81 kilometer in 4.5 liters of petrol. How far will it go by 20 liters of petrol? भाई 20 लीटर पेट्रोल में कितना फासला तय करेगी। How far कितनी दूर जाएगी। Will it goes by 20 liters of petrol. भाई let x be the required distance traveled by the car in 20 liters. भाई इन 20 लीटर्स आपके पास क्या जी वो है। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 20 लीटर्स जी। तो भाई जिनका होगा 4.5 पेट्रोल, उसमें फासला तय करती 81 जी। भाई जब पेट्रोल 4.5 है तो भाई जन फासला कितना 81 किलोमीटर। जब पेट्रोल 20 होगा तो भाई डिस्टेंस कितना होगा जी। अब भाई जन देखें कि दिस इज डायरेक्ट। भाई जब जाहिर है कि 4.5 में ये 81 है तो 20 जो है ना वो उसमें कितना फासला तय होगा जी। जी तो देखिएगा, जब पेट्रोल 4.5 है तो डिस्टेंस है 81। जब 20 लीटर पेट्रोल होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। भाई ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिंस क्वांटिटीज आर रिलेटेड डायरेक्टली। सो बाय अबव प्रिंसिपल आप 4.5 ओवर बाई 20 बराबर होगा 81 ओवर एक्स। भाई 4.5 ओवर 20 बराबर होगा 81 ओवर एक्स। वंस अगेन, ए कार ट्रेवल्स 81 किलोमीटर इन 4.5 liters of petrol. How far will it goes by 20 liters of petrol? भाई 20 लीटर्स में कितना पेट्रोल तय करेगी। नाउ 4.5 लीटर पेट्रोल है तो भाई डिस्टेंस क्या 81 किलोमीटर। 20 लीटर पेट्रोल होगा तो एक्स डिस्टेंस होगा जी। तो 4.5 ओवर 20 बराबर होगा 81 ओवर एक्स। अब जो वी हैव 4.5 ओवर 20 बराबर 81 ओवर एक्स। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हमारे पास होगा 360 किलोमीटर। एक्स हमारे पास होगा 360 किलोमीटर। भाई 360 किलोमीटर जो है ना वो फासला तय करेगा जी 20 लीटर ऑफ पेट्रोल में।